جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام KNI کے ساتھ علی فاروق حاضر ہے۔ آج ہم لاہور قلعے، جسے لاہور فورٹ بھی کہا جاتا ہے، ادھر آئے ہیں۔ لاہور فورٹ بیسیکلی تو قبل از مسیح تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اکبر بادشاہ کے دور میں، جو مغل بادشاہ تھا، اس کے دور میں لاہور کے اس قلعے کو عرصر نو تعمیر کیا گیا، اور مٹی کا قلعہ تھا جسے اب اس پہ پتھروں پہ سے تعمیر اس کو کیا گیا تھا۔ اس قلعے میں ہم لے کر آئے ہیں۔ یہ اس ٹائم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لاہور قلعے میں مختلف ادوار میں، یعنی مغل بادشاہ کے بعد، یعنی رنجیت سنگھ کا دور بھی تھا۔ رنجیت سنگھ یہاں سے بیٹھ کے پنجاب میں حکومت کرتا تھا، کشمیر میں حکومت کرتا تھا، کابل تک اس کی حکومت تھی۔ رنجیت سنگھ کے بعد یہ حکومت آئی گوروں کے پاس، یعنی گوروں نے حکومت چھین لی۔ رنجیت سنگھ کی زندگی کے بعد جو اس کے ورثہ تھے وہ اس کو سنبھال نہیں سکے، اس حکومت کو، تو بہرحال اس کے بعد گوروں نے اس پر قبضہ کیا، پنجاب پر، اور یہاں گوروں نے بھی اس میں، یہ جو میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں آپ اس ٹائم، اپنا دیوان عام کو گوروں نے اپنے دور میں 1857 کے بعد، یعنی کہ اس کو ملٹری ہاسپٹل بھی بنایا اپنے سولجرز کے لیے، اس کے لیے۔ اور یہاں آپ کو ہسٹری بھی بتائیں گے اس کی، اور اس حوالے سے بتائیں گے کیا اس کی صورتحال چل رہی ہے اور اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ جی میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، شاہی قلعے کے اندر ہم موجود ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر روایتی دکان ہے، ایک جہاں شاپس ہیں جہاں یہ چیز مل رہی ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ کیمرہ مین کہتا ہوں یہ دکھایا ذرا، یہ شاہی قلعے کا یہ مین گیٹ ہے۔ اس کا اورنگزیب عالمگیر کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ سلہ والی جو چنوڑ کے پاس علاقہ ہے، وہاں سے یہ لکڑی کا ماڈل تیار ہو کے ادھر بکنے کے لیے آیا ہے، اور غالباً یہ 1000 یا 800 روپے کا ہے۔ یہ بادشاہ مسجد ہے۔ یہ بادشاہ مسجد کو کیمرہ مین کو دکھائیں، یہ ماڈل دکھائیں، لکڑی کا ماڈل، بڑا باریک کام ہاتھ کا کیا ہے۔ یہ بادشاہ مسجد کا ماڈل بنایا ہے، اور یہ غالباً 1000 روپے کا۔ یہ اس سے بڑا ماڈل ہے۔ یہ کیمرہ مین کو کہتے ہیں یہ دکھائے ذرا، یہ ادھر قریب آ کے ذرا ناظرین کو دکھائیں۔ یہ ماڈل اس سے بڑا ہے، یہ 1200 روپے کا۔ اور یہ جو ماڈل ہے یہ شاہی قلعے کا مین گیٹ کا دروازہ ہے، یہ بھی شاید 1200 کا ہے، یا شاید اس سے مہنگا ہوگا۔ اسی طرح یہ لکڑی کی صندوقیاں ہیں، یہ ہم کو ان کو کہتے ہیں دکھائیں ذرا، ایک منٹ ذرا، یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ جولی باکس ہے جی، یہ جو ادھر بیچ رہے ہیں۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ الطاف بھائی سے ریکویسٹ کی ہے، یہ دکھا رہے ہیں۔ یہ ناظرین یہ دیکھیں، جولی باکس ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ یہ کتنے کا الطاف صاحب؟ یہ 2500 روپے کا۔ اس میں یہ روایتی طریقے سے بنایا گیا، بڑے خوبصورت انداز سے۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ صندوق، یہ بھی دکھائیے گا جی ذرا۔ یہ 3 پیس ہے، یہ ناظرین یہ بھی دیکھتے ہیں، بڑا روایتی ہے۔ یہ کتنے کا جی؟ یہ 2000۔ یہ الطاف صاحب لکڑی کون سی ہے اس میں؟ یہ دیکھیں ناظرین، بڑا خوبصورت بنایا ہے، یہ پرانے طرز پہ بنایا گیا۔ پرانے زمانے میں جو خواتین تھیں وہ اسی طرح یہ اس پہ اپنے زیورات وغیرہ رکھتی تھیں۔ اور بھی ان کو کہتے ہیں چیزیں دکھائیں، یہ ذرا روایتی دکھائیں ہمیں چیزیں۔ یہ خوش میوہ جات رکھنے کے لیے، ڈرائی فروٹ رکھنے کے لیے بڑی خوبصورت ہے یہ ایک۔ اور یہ روایتی طور پہ جو ہم پنجاب کی ثقافت کا بھی حصہ ہے، یہ پیڑیاں ہیں، یہ ماڈلز بنائے گئے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ سب چیزیں شاہی قلعے کے اندر فروخت ہو رہی ہیں اور مناسب قیمت میں فروخت کی جا رہی ہیں۔ یہاں جو سیاح آتے ہیں دیکھنے کے لیے وہ ان چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں اور یہاں سے خریدتے بھی ہیں۔ یہ روایتی پنکھیاں، یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو جی، یہ روایتی پنکھی ہے جی۔ اس کو ایک منٹ یہ دکھاتے ہیں، یہ بنائی گئی ہے میسٹ ماڈل کے طور پہ، لیکن ہوا بھی اچھی آ رہی ہے۔ یہ ایک ٹیلی فون کا سیٹ بنایا ہے، لیکن ٹیلی فون کا سیٹ بھی انہوں نے پتھر کے اوپر بنایا ہے، لیکن یہ اس دور میں تو نہیں تھا، لیکن بڑا خوبصورت سیٹ یہ ہاتھ سے بنایا گیا ماڈل ہے ایک طرح کا۔ یہ سیٹ ڈیکوریشن پیس کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ جی ناظرین، یہ آپ کو چیزیں دکھائی ہیں۔ اب ہم آپ کو اندر ہی لے کے قلعے کے اندر ہی موجود ہیں، شہریوں سے بھی بات کرتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، شاہی قلعے کے اندر موجود ہیں، اور یہاں پر رانا افضل صاحب ہیں جو یہاں گائیڈ بھی ہیں، ان سے پوچھیں گے اس کی ہسٹری بھی، اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے یہ قلعہ کتنا پرانا ہے، اس میں کون کون سی عمارتیں ہیں، اور ان کی تاریخی نوعیت کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ پاک کا شکر ہے سر۔ صاحب مہربانی ٹائم دینے کا، ایک تو بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تھوڑا سا ہمیں ہسٹری بھی بتائیں، ساتھ ساتھ ہم چلیں گے۔ جی سر، سب سے پہلے سر آپ کو ویلکم
आप लाहौर फोर्ट के अंदर आए, और दूसरा मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ इस किले के अंदर। दूसरा, आपने इसकी तारीख की बात की है, ये जो किला अराउंड अबाउट 3000 ईयर्स ओल्ड इसकी जो है फाउंडेशन है। ये जो प्रेजेंट शेप सर आप देख रहे हैं, इसको अकबर बादशाह ने 1566 में वो मिट्टी का किला गिरा के ये पक्की ईंटों का किला बनाया था, और ये सारा किला सर 107 साल में मुकम्मल हुआ था। अकबर ने शुरू किया और उसके कितने अरसे में मुकम्मल हुआ था? 107 साल में, यानी 107 और इमारतों में इजाफा होता गया। जी, इमारतों में इजाफा होता गया। अकबर ने सर इसको शुरू किया और उसके पड़पोते औरंगजेब आलमगीर ने इसको मुकम्मल किया। इस किले के 4 बिल्डर किंग हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और किंग औरंगजेब आलमगीर, बाप, बेटा, पोता और पड़पोता। लेकिन अफसर साहब, मैं ये आपको बताऊंगा कि रंजीत सिंह के दौर में भी इमारतें बनी हैं इसमें। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, ये पहले मैं वो पीरियड बता रहा हूँ जो मुगलों का पीक टाइम है। जो रंजीत सिंह था वो मुगलों के बाद में नहीं आया, वो मुगलों के मिड में आया था, फ्रॉम 1799 टू 1839। और महाराजा रंजीत सिंह के दौर में 3 से 4 जो मोनूमेंट थे उनका इजाफा किया गया था, जिसमें सबसे पहले ये हवेली रानी जंदा सर, ये उनकी जो बेगम थी। कैमरामैन को दिखाएं जी हवेली रानी जंदा जी, ये ऊपर देखें जी, ये हवेली रानी जंदा उसकी लाडली बीवी थी, और ये 1833 में बनाई गई थी सर, ये वाली। उसके पीछे हवेली खड़क सिंह। वो हम चलते हैं साथ साथ वो देखते हैं। अभी तो साथ ये मोती मस्जिद आ गई है नाज़रीन, ये मोती मस्जिद है, ये आपको दिखाते हैं। आ जाएं जी। जी नाज़रीन, ये मुकातब खाना है, मस्जिद इससे पीछे है। मुकातब खाने के अंदर पहले हम दाखिल हुए हैं जी। ये क्या था जी? बेसिकली सर ये रिटर्न रिकॉर्ड रखा जाता था, जो भी इस किले के अंदर आता था सबसे पहले यहाँ पे वो रजिस्टर्ड होता था, उसके बाद फिर उसको एलोकेट किया जाता था अंदर किले में जाने के लिए। ये 1617-18 में इसको जहांगीर के पेड़ में बनाया गया था, और जहाँ पे बुक होती है वो कुतुब खाना होता है, जहाँ पे रिटर्न रिकॉर्ड रखा जाता है उसको मुकातब खाना कहते हैं। और जहांगीर के पेड़ में आप इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन डेस्क भी कह सकते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन डेस्क भी कह सकते हैं। जी नाज़रीन, चलते हैं। ये मुकातब खाने के आपको मुख्तलिफ वो जगह दिखाते हैं, यहाँ रजिस्टर किए जाते थे जो ऑडियंस आती थी। जी अफसर साहब बताइएगा, ये मुकातब खाने के ये कौन सा हिस्सा था? ये जो कैमरामैन दिखा रहे हैं जी, कैमरामैन, ये जो बिल्कुल साइडें आपको नजर आ रही है ना, यहाँ पे उस वक्त उनके जो क्लर्क थे, जो रजिस्ट्रेशन क्लर्क थे, वो बैठा करते थे मेन में। और इसके अंदर ये फ्रेस्को का काम देखे सर कितना खूबसूरत हुआ है। ये उस वक्त कैमरामैन को कहेंगे दिखाए फ्रेस्को का काम। हमारे कैमरामैन साहब दिखाएंगे जी ये फ्रेस्को का काम। बेसिकली फ्रेस्को सर था क्या, ये प्योर फलों से, सब्जियों से नेक्टर लेते थे, उनके अंदर कोकोनट ऑयल इस्तेमाल किया जाता था, फिर कलर डाले जाते थे, फिर इनको पेंट किया जाता था। और उस वक्त ब्रश इस्तेमाल नहीं होता था सर, स्क्विरल टेल, गैलरी नहीं होती सर, उसकी जो टेल थी उसको एज ए ब्रश इस्तेमाल किया जाता था। बेसिकली ये पर्शियन आर्किटेक्चर था। और कैमरामैन कहेंगे दिखाएं जरा एक दोबारा ये फ्रेस्को का काम। ये और ये फ्रेस्को का काम किसी दौर में, जैसा कि अफसर साहब ने बताया है, कि जानवरों और इनकी मुख्तलिफ चीज़ों से बनकर कलर बनाए जाते थे। फलों और सब्जियों से नेक्टर या जूस जो भी उनका निकाल के इसको बनाया जाता था। लेकिन ये अब तो ये देसी रंगों से जो है उसको फ्रेस्को को इन्होंने बहाल करने के, उस काम को बहाल करने की कोशिश की है। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये कमरे इसके, ये मुकातब खाना था, और यहाँ सारे लोग बैठे होते थे, रजिस्टर करते थे जो भी बादशाह से या जो भी आला अफसरान से मुलाकात के लिए आते थे, आम आवाम भी और जो भी बुजरा भी, जो भी। दे दी। अब हमें मोती मस्जिद दिखाएं जी नाज़रीन, मोती मस्जिद देखते हैं। तो ये उस दौर में भी रहा है जी, ये ऐसे ही आ जाए साथ आ जाए। जी सर, बिल्कुल ये उस दौर में भी ऐसे रहा जी। जी नाज़रीन, जी अफजल साहब आते रहे। अच्छा सर, ये जो मोती मस्जिद है ये शाहजहां के पीरियड 1645 में बनाई गई थी। और मज़े की बात ये है सर, ये एट ए टाइम 3 मस्जिदें बनाई गई थी, और तीनों को मोती मस्जिद कहते हैं। एक लाहौर के किले में, एक आगरा के किले में, और एक दिल्ली के किले में। और तीनों जो है शाहजहां के पीरियड में बनाई गई थी। लेकिन आगरा वाली जो मोती मस्जिद थी, शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया था, शाहजहां ने औरंगजेब को कैद कर लिया था, और उसके बाद फिर उसकी जो तकमील थी वो औरंगजेब ने उसको मुकम्मल किया था। हाँ जी, ये मोती मस्जिद है, इसको 4 बजे सर बंद कर दिया जाता है। जी नाज़रीन, मोती मस्जिद में रेस्टोरेशन का काम जारी है। कैमरामैन को कहते हैं दिखाएंगे, सामने ये मोती मस्जिद है, ये उन्होंने मरम्मत की वजह से जो रेस्टोरेशन का काम हो रहा है, जिस वजह से उसको बंद किया है और ताला लगा है। सुबह के टाइम कहते हैं खोलते हैं, लेकिन उम्मीद है कि 1 आध महीने में रेस्टोरेशन का काम मुकम्मल हो जाएगा और वो खोल दी जाएगी। आप शीश जाते हैं, वो भी बताया गया है कि वहाँ भी रेस्टोरेशन का काम हो रहा है। तो सिर्फ एक आपको नज़र दिखा देते हैं, उसके बाद हम बाकी किले की तरफ अफजल साहब को लेके जाते हैं। ये नाज़रीन, ये शाही किले के अंदर ही मौजूद है। अफजल साहब से पूछेंगे, ये दिखाएं ज़रा, कैमरा में कहेंगे ये आलमगीरी दरवाज़ा दिखाएं।
ये अफजल साहब बताएं इसकी हिस्ट्री क्या है? सर बेसिकली औरंगजेब आलमगीर ने इसको 1674 में बनाया था। ये मस्जिद का उसने मस्जिद की एंट्रेंस के लिए बनाया था और इसकी आमदरफ्त रखी थी नमाज के लिए। इसके सामने बाशी मस्जिद है सारी, लेकिन ये जो दरवाज़ा है आज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है, ये वाला दरवाज़ा। नाज़रीन उसमें अगर देखें, कैमरामैन को फिर कहेंगे दिखाए, ये पीछे अकब में ये बादशाही मस्जिद है, उसके मीनार 3 नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली हम किले के अंदर है, किले के ये बैक साइड है ये दरवाजे की। हम फ्रंट साइड भी दिखाएंगे आपको, और ये कैमरामैन को कोई दिखाएं, ये बुलंद वाला जो मीनार हैं बादशाही मस्जिद के, ये भी औरंगजेब आलमगीर के दौर में उन्हीं के हुक्म पर तमीर की गई थी। और ये बुलंद वाला मीनार हैं जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो पत्थर था ये किसी दौर में शायद ये हज़रत मियाँ मीर तक सड़क जानी थी, उसके लिए दाराशुको जो औरंगजेब आलमगीर का बड़ा भाई था उसने मंगवाया था, लेकिन वो बादशाह बनना उसका किस्मत में नहीं लिखा था। तो बहरहाल उसके बाद फिर बादशाह ने और बाकी उस वक्त की हुकूमत ने फैसला किया कि वहाँ सड़क बनाने के बजाय यहाँ बुलंद और ऊंची और सबसे उस दौर में सबसे बड़ी मस्जिद बादशाही मस्जिद बनाई गई। ये चलिए शाही उस साइड पे चलते हैं, शीश महल की तरफ चलते हैं। जिस जगह पे नाज़रीन हम मौजूद हैं यहाँ पर कहा जाता है कि ये अफसर साहब ये क्या था? ये टूटे हुए कमरे हैं, ये क्या चीज़ है? जो आपको गरीबी नज़र आ रही है, ये बेसिकली जो शीश महल था उसके जो सिक्योरिटी इंचार्ज हुआ करते थे वो ख्वाजा सरा होते थे, जिनको आप इंग्लिश में यूनिक और ट्रांसजेंडर कहते हैं। ये उन्हीं के कमरे थे और जीत सिंह के दौर में इसको गिरा दिया गया था और जीत सिंह के दौर में यहाँ पे धोबी गार्ड बना दिया गया था कपड़े वगैरह जो है धोने के लिए। तो ये जो फाउंडेशन आपको नज़र आ रही है ये मुगल दौर की ओरिजिनल फाउंडेशन है, जिसको बाद में रणजीत सिंह ने मॉडिफाई करके तो इसको धोबी गार्ड बना दिया था। नाज़रीन ये जैसा कि बताया इन्होंने कि ये बनाया गया था, ये अभी भी रहा करते थे, लेकिन कहा गया है इनके अफसर साहब ने बताया कि रंजीत सिंह के दौर में धोबी गार्ड बना दिया गया था, कपड़े वगैरह धुलाई वगैरह थी। जी नाज़रीन इस टाइम हम शाही किले के अंदर ही मौजूद हैं। ये गुरुद्वारा बनाया गया था रंजीत सिंह के दौर में, जो इस टाइम मरम्मत की जा रही है इसकी, और वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है। जी ये अफसर साहब बताइएगा गुरुद्वारा कब बना था और ये अब क्या सूरत हाल है? ये बेसिकली जो गुरुद्वारा था ये महाराजा रंजीत सिंह ने 1820 में बनाया था सर। ये उसकी एडिशन थी महाराजा रंजीत सिंह की। यहाँ पे उसके जो ख़ानदानी लोग थे, जो उसकी फैमिली के लोग थे, उन्हीं के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था मजहबी मकासद के लिए। अब काफ़ी देर के बाद जो है इसको दोबारा हमारी वॉल सिटी अथॉरिटी जो है उसको दोबारा इसको रिस्टोर कर रही है, इसको रेनोवेट कर रही है इसको। कब तक बहाली का काम कमा? ये इस किले की बहाली पे तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा और बड़ा अच्छा काम किया हमारी वॉल सिटी अथॉरिटी ने, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको ये जो किला है और बहुत बेहतर और बहुत अच्छी हालत में नजर आएगा इसको। तो नाज़रीन ये था गुरुद्वारा शाही किले के अंदर। हम मुख्तलिफ अमारात के बारे में बता रहे हैं, ज़ाहिर है कि उसकी हिस्ट्री भी साथ बता रहे हैं मुख्तसर सी, और जो उस टाइम उसकी मौजूदा कंडीशन उस हवाले से भी बता रहे हैं। जी अब चलते हैं शीश महल की तरफ, वो भी ज़ेर तमीर, वो भी रेनोवेशन का काम हो रहा है, वो भी देखते हैं। जी ये इसकी एंट्रेंस है जी शीश महल की। ये कैमरामैन को कहते हैं ज़रा दिखाए जी, इनका ये एंट्रेंस थी। ये बेसिकली शाहजहां के दौर में तामीर किया गया था, और कहा जाता है कि मुमताज़ महल जो उसकी ज़ौजा थी उसके लिए बनाया गया था, लेकिन वो बदकिस्मत मलका को यहाँ आना शायद नसीब नहीं हुआ था। इस हवाले से हम अफजल साहब से भी पूछेंगे इस बारे में वो क्या कहते हैं। जी ये नाज़रीन शीश महल की एंट्रेंस है जहाँ हम खड़े हैं, और इस हवाले से पूछते हैं ये अफजल साहब से कि एंट्रेंस इसकी बंद है और ये कब तक मरम्मत का काम जारी मुकम्मल होगा, और इसकी कौन कौन से काम की मरम्मत की जा रही है? सर इसके अंदर बेसिकली ये मैं थोड़ी सी पहले हिस्ट्री बता दूं आपको। ये जो शीश महल था इसको शाहजहां ने अपनी लाडली मलका मुमताज़ महल जो आगरा में दफन है ख़ास उसके लिए बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट सी दिस पैलेस। वो ये था वो उसके सिर्फ इसके गेट की फुटेजेस दिखा रहे हैं जी। इसकी बेसिकली शाही किला जो शीश महल था ये बनाया मलका मुमताज़ के लिए गया था, लेकिन वो उसको देख ना सकी, उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसको आगरा में दफन कर दिया था और सेम ईयर ही उसकी डेथ हुई थी जिस साल ये बन रहा था। अब इसके अंदर जो काम था वो बड़ा, हमारी वॉल सिटी अथॉरिटी के आने के बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा काम हुआ। इसकी जो रेस्टोरेशन थी उस पर बड़ा अच्छा काम हुआ है, इसकी रेनोवेशन पे बड़ा अच्छा काम हुआ है, और आने वाले में साल 2 साल में आपको जो शीश महल है रेस्टोरेशन के बाद जो है क्या चीज़ किस चीज़ की रेस्टोरेशन? यस इसके अंदर सबसे पहले इसकी जो दीवारें थी और इसकी जो छत थी, इसकी छत का बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको दोबारा जो है उसी बेस पे अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करके उसकी जो छत की बहाली है उसी को एज इट रखा जा रहा है, क्योंकि रेप्लिकेट तो उसको किया नहीं जा सकता ना। तो उसकी जो ओरिजिनलिटी है उसको सस्टेन करने के लिए उसका जो उस वक्त की छत है उसको एज इट बहाल किया जा रहा है।
नाज़रीन आगे चलते हैं और मज़ीद आप क्या दिखाएंगे जी? आप अब हम आपको गार्डन दिखाएंगे जी, शाही खानदान की। जी चलिए जी। नाज़रीन ये ब्रिटिश दौर की जेल थी जो अंग्रेज़ दौर में बनाई गई थी कैदियों के लिए। सियासी कैदी भी थे और इसमें जो हमारे जो वो ऐसे रेबल और 2 मुजाहिदीन भी थे जिन्होंने तहरीके जंग आज़ादी के हक में यानी कि तहरीक चलाई। और इनसे पूछते हैं अफजल साहब जी। बेसिकली सर ये जो जेल है ये कैद खाना पड़ता, ये 1857 का बनाया हुआ। 1857 में फरूख साहब एक मसला हुआ था, एक कारतूस था जिसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। उसको चलाने से पहले मुंह से उसका कवर उतारा जाता था। मुसलमान सूअर को, हिंदू गाय को मुंह नहीं लगाते। मंगल पांडे पहला सोल्जर था जिसने मेरठ छावनी में लेफ्टिनेंट बाफ को गोली मारी थी। उसके बाद पूरे बरसगीर में एक फजा फैल गई थी बगावत की, तो अंग्रेजों ने हर शहर के अंदर जो है कैद खाने बनाए थे। और ये डबल स्टोरी था फरूख साहब, ये डबल स्टोरी था। इसका जो सेकंड लेवल था वो यूब खां के दौर में इसको जो है गिरा दिया गया था, और जो लेवल 1 है वो अभी भी ये अंग्रेज दौर में बना जी 1857 में, ब्रिटिश पीरियड में। 1857 ब्रिटिश पीरियड में बना था। अब चलते हैं बाकी रॉयल गार्डन देखते हैं जो किले के अंदर मौजूद है जी। नाज़रीन इधर मौजूद हैं रॉयल गार्डन के अंदर ही हम आए हैं, ये अभी बताते हैं ये क्या था जी इधर अफजल साहब? बेसिकली सर ये पाई बाग है, ये पाई बाग है। जो पाई है ये फारसी का लफ्ज है। जो लो लेवल का गार्डन होता है जमीन से उसको पाई बाग कहते हैं। और हरम की जितनी औरतें होती थी उनको उनके लिए पाई बाग ही बनाए जाते थे। इसके चारों तरफ ये सिक्योरिटी के कमरे थे जिनके अंदर ख्वाजा सरा और कनीजें जो है वो खिदमत के लिए खड़ी रहती थी। इनके चारों तरफ पर्दे लगाए जाते थे, पर्दों के बाद ये सिक्योरिटी के रूम थे। और मैन आर नॉट अलाउड एट दिस साइड, जो मेल स्टाफ था वो इस तरफ आ भी नहीं सकता था। और सिखों की जब सिविल वार हुई इसके सराउंडिंग में ये कमरे गिर गए थे। सिखों के जब सिविल वार हुई है तो उस दौर में ये कमरे गिर गए थे सर, ये वाले और आपकी बैक साइड वाले। दूसरा नाज़रीन बताना था ये अपनी ओरिजिनल शेप में ही गार्डन है ये बाग, और इधर पहले बाग ही था। इसमें ये नहीं कि नई चीज़ एडिशनल कोई चीज़ इन्होंने नहीं इधर की। ये ज़ाहिर है कि घास वगैरह तो अभी लगी है लेकिन ओरिजिनल तौर पे भी उस दौर में ऐसे ही ये यानी स्ट्रक्चर बनाया गया था। बीच में फव्वारा था, वो आप देख सकते हैं कि वो फव्वारा भी था बीच में, और इस तरीके से इसको बनाया गया था। ये राहदारी इसकी देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें भी आए बगैर तब्दीली शायद की होगी लेकिन अपनी असल शक्ल में ही इसको बहाल रखा गया है। ये आगे चलते हैं नाज़रीन। पाई बाग है और ये बीच में सेंटर में भी फव्वारा था, और ये मुगलिया दौर में ही तमीर किया गया था। ये दरबानों के लिए था और बेसिकली ख्वाजा सरा जो ख़वातीन का हरम के सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ थी इधर। और ये भी कहा गया है कि इधर उस दौर में यानी कि मर्दों का दाखिला ममनू था और यहाँ ख़वातीन का ये सिर्फ आ सकती थी, या ख्वाजा सरा उसकी कम्युनिकेशन का काम करते थे, सिक्योरिटी का भी। आगे चलते हैं और आगे ये क्या चीज़ है जी ये बताएं? ये वाला ये फरूख साहब खलवत खाना, खलवत कहते हैं तन्हाई को, शाही खानदान की और कहते हैं ये सामने सर खलवत खाना, खलवत कहते हैं तन्हाई को। शाही खानदान की औरतें तन्हाई में यहाँ बैठ के नीचे दरिया रावी, ये नीचे सारा दरिया रावी था जी, उसके व्यू के लिए बैठा करती थी। ये सर लाल बुर्जा, ये काला बुर्जा। आके देखते हैं, आए जी नाज़रीन चले आगे आपको दिखाते हैं। ये नीचे मैं इनको कहूँगा अपने कैमरामैन को शाहीन बाबा साहब को कि ये दिखाएं नीचे। ये स्विमिंग पूल था, ये पूल था और मेरे ख्याल से ख़वातीन इधर अपना नहाती भी होंगी गर्मियों में, शदीद गर्मी के मौसम में यहाँ वो नहाने के लिए आती थी। और ये स्टेप भी देख लें, एक स्टेप से ऐसे आना फिर दूसरे स्टेप से नीचे उतरना। और ये सामने अगर कैमरामैन दिखाए तो ये खलवत खाना था और यहाँ से दरिया रावी उस टाइम का इसी रुख से गुजरता था, उसका रास्ता ही यही था। और आगे आ जाए। ये खलवत खाना था उस दौर में, मुगलिया दौर में और सिखों के दौर में। ख़वातीन यहाँ बैठ के दरिया रावी का नज़ारा करती थी। दरिया उस वक्त बिल्कुल किले के करीब से ही गुजरता था और गर्मियों के मौसम में भी वो अपना एंजॉय करती थी और सर्दियों के मौसम में भी एंजॉय करती थी। अफजल साहब ये ज़रा बताइएगा, ये जो इमारत है ये कौन सी इमारत है? ये इधर आके ज़रा प्लीज़। ये फरूख साहब ये आपके ये काला बुर्ज, ये आपकी बिहाइंड जो है ये लाल बुर्ज। नहीं, ये मुझे काला बुर्ज पता है। ये क्या था जी? बेसिकली सिक्योरिटी वाइट टावर थे। ये बेसिकली फरूख साहब सिक्योरिटी वाइट टावर थे। और जहांगीर ने अपने लाडले बेटे खुसरो मिर्जा की दोनों आंखें इसी बुर्ज में निकाली थी। ये हम नाज़रीन को दिखाएंगे जी। अपने बेटा जिसने गद्दारी की, बाप के खिलाफ खड़ा हो गया खुसरो, और उसकी आंखें यहीं निकाली गई थी, उसको मौत की सजा नहीं दी गई थी। बाकी उनके जो साथियों को तो लटका दिया गया था, इधर फांसियां दी गई थी और दर्जनों नहीं सैकड़ों के हिसाब से फांसियां दी गई थी उस वक्त।
اور یہاں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ لٹکایا گیا تھا. اس کو یہاں پہ بہرحال جی ابھی کام یہاں رینویشن کا ہو رہا ہے, تو امید کرتے ہیں کہ بہتر کام ہوگا تو اصل حالت میں جب یہ بحال ہوگی اس پر بھی دکھائیں گے. دوسرا رخ اس کا دکھائیے گا, یہ کیمرہ مین کو کہتا ہوں یہ دکھائیں, سامنے جو اس کے مد مقابل عمارت ہے وہ دکھائے. ان کو جو ہے کچھ اسپیسیفکیشن کوئی نہیں تھی. کہا جاتا ہے اس کے اوپر جو باؤنڈری تھی نا وہ لال پوری کی تھی, اس کے اوپر جو باؤنڈری بنی ہوئی تھی نا وہ کالے برج کی تھی اور کالے پتھر کی تھی, اور یہ دونوں سیکورٹی واچ ٹاور تھے. یہ دریا تھا نا نیچے, تو ڈیفینس کے پرپز سے لیکن خواتین ہی آتی تھیں. خواتین کے لیے ویسے لال اور کالا برج کا نام دیا گیا. جی کالا لال اور کالا برج. اب آپ کو ہمیں کون سی جگہ دکھائیں گے؟ اب ہم دکھائیں گے جی شاہ جہان کے بیڈ روم آپ کو. ناظرین شاہ جہان کے بیڈ روم دکھائیں گے جو اس نے اپنے دور میں تعمیر کروائے تھے, اور نئی عمارات بھی دکھائی تھی, اور جہانگیر بادشاہ کے بھی بیڈ روم کو دکھایا جائے گا, اور اس کے بعد دیوان عام اور دیوان خاص کو بھی دکھاتے ہیں. جی میرے ساتھ رہیے گا. چلیے جی ناظرین, شاہی حمام خانہ جو اس کے اندر تھا خواتین کے لیے جو قلعے کے اندر بنایا گیا تھا, اس کو ریسٹور کیا ہے وال سٹی اتھارٹی نے بڑے اچھے طریقے سے. میں کیمرہ مین کو کہوں گا پہلے یہ نیچے دکھائیں فرش. یہ کہا جاتا ہے کہ اصل اس پہ بحال کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بھی آپ دکھائیں, یہ کون سا پتھر ہے جی؟ یہ وہ اسٹون ابری ہے جی, وہ اسٹون ابری ہے, یہ ماربل ہے. اس وقت یہ انڈیا سے آتا تھا, اب یہ ہمارے ناردرن سائڈ سے آتا ہے. یہ کیمرہ مین کو ٹب دکھائیں, یہ خواتین کے لیے ٹب تھا, یہ نہانے کے لیے. یہ افسر صاحب ادھر آئے آپ پلیز, ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں اس کی. یہ شہن صاحب نیچے یہ آپ کے یہ ٹھنڈے پانی کا سر, یہ والا یہ اوپر سے کور تھا. سکھوں کی سول وار کے دوران یہ کمرہ گر گیا تھا. آپ جی یہ آپ کے رائٹ اور لیفٹ چینجنگ روم تھے سر, یہ والے. اور یہاں پہ درمیان میں جو ہے اس وقت جو ہے شیشہ وغیرہ لگا ہوتا تھا, ڈریسنگ وغیرہ, جہاں وہ نہانے سے پہلے یہ بعد میں تیار ہوا کرتے تھے. یہ ٹھنڈے پانی کا, یہ گرم پانی کا. اچھا گرم پانی کا فروخ صاحب, ایک سیکنڈ یہ جی یہ ٹھنڈے پانی کا سر, یہ گرم پانی کا. اس کے پیچھے جو ہے, اس کے پیچھے جو ہے وہ سر سہانا تھا, اسٹیم باتھ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین, تیسرا سٹیپ تھا سہانا تھا. یہ کون سا پانی تھا؟ یہ گرم پانی کا. یہ گرم پانی کا تھا, لیکن وہ ابھی بند کیا گیا, ابھی ریسٹور نہیں کیا جا سکا اس کو مکمل طور پر, لیکن زیر تعمیر ہے, تعمیراتی کام جاری ہے. جی تعمیراتی کام ہے, اور آفٹر دا ریسٹوریشن اٹ ول بی گلوریس انشاءاللہ, اور اچھا آپ کو نظر آئے گا اس پر. اور یہ کب تک ویسے بحال ہو جائے گا؟ یہ 2 سے 3 سال اور لگیں گے, سارا کام اچھا ہو جائے گا. یہ ناظرین شاہ جہان کے دور میں بیڈ رومز بھی تعمیر کیے گئے تھے اس کے لیے, رہنے کے لیے بادشاہ نے خصوصی طور پر, کیونکہ تعمیرات کا بڑا شوق تھا, اور انجینئر بادشاہ بھی اس کو کہا جاتا ہے شاہ جہان کو. تو افسر صاحب ذرا بتائیے, کیمرہ مین کے آگے ذرا دکھائیں ذرا. اب ہم داخل ہو رہے ہیں جی شاہ جہان کے بیڈ روم میں. یہ 1633 میں لاہور کے گورنر وزیر خان نے بنائے تھے, جنہوں نے دلی گیٹ کے اندر وزیر خان مسجد بھی بنائی ہوئی ہے. یہاں پہ آپ کو ایک بڑی پیاری سیمیٹری دکھاتے ہیں سارے. ہاں جی یہ دیکھیں سر, یہ ابھی تک اوریجنل چھت ہے سر, جس میں دال, ماش, گڑ, چونا, ماربل پاؤڈر, بڑے جانوروں کی ہڈیاں اور دوسری چیزیں مضبوط کر کے اس کو پکایا جاتا ہے, اور پھر اس کو اینٹوں کے درمیان. بادشاہ خود رہا بھی ہے ویسے جی, شاہ جہان نے لاہور میں جب آتا تھا یہاں پہ رہتے. یہاں پہ ایک چیز دیکھیے گا فروخ صاحب, یہ سر اس کا 2nd لیول ہے, اب یہ بند ہے ریسٹوریشن کے لیے. اچھا یہ ہے کیا چیز؟ یہ کمرے ہیں نیچے. اچھا نیچے کمرے شدید گرمیوں میں, نیچے بیسمنٹ جو ہے استعمال کی جاتی تھی. کیمرہ مین کو یہ دکھائیں, میں ان کو دکھاتا ہوں یہ ناظرین کو. یہ گرمیوں کے, شدید گرمیوں کے وقت, یعنی کہ اس ٹائم اے سی بھی نہیں تھے, پنکھے بھی نہیں تھے, تو اس وقت بادشاہ کے لیے خصوصی طور پہ یہ زیر زمین تہہ خانے میں کمرے بنائے گئے تھے جو ٹھنڈے تھے, اور وہاں کافی ٹیمپریچر کم تھا, جس کی وجہ سے. فروخ صاحب یہاں پہ میں نے آپ کو ایک سیمیٹری دکھانی ہے, کیمرہ مین شہین بھائی وہ دکھائیں ذرا سامنے. یہ پانچوں کے پانچوں دروازے ایک ہی لیول پہ لگائے گئے تھے, ہاں جی, تاکہ ہوا کا جو دباؤ اور پریشر ہے ہر کمرے کے اندر ایک جیسا آ سکے. جب آپ یہاں پہ کھڑے ہوں گے تو سیدھا دیکھیے گا, ایسے لگے گا آپ شیشے کے آگے کھڑے ہیں. دیکھیں گا کیا کمال آرکیٹیکچر ہے, دیکھیں تاکہ وینٹیلیشن اور شدید گرمیوں میں گرمی نہیں لگتی تھی. بڑا بہترین سسٹم تھا. مزید آگے دیکھتے ہیں جی اس کمرے کی سائڈ پہ. جی ناظرین, یہ شاہ جہان کے جو بیڈ روم سے جہاں رہتا تھا لاہور میں, وہ آپ کو دکھا رہے ہیں. جی افضل صاحب ذرا بتائیے آگے. جی صاحب, اور یہ سیمیٹری میں نے بھی آپ کو جو دکھائی ہے فروخ صاحب, یہ بڑا کمال آرکیٹیکچر ہے ان کا مغلوں کا. یہ جے پور جودھپور کے قلعے میں بھی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کو بھی جیومیٹریکلی اور سیمیٹریکلی ایک ہی لیول پہ بنایا جاتا ہے. ذرا دکھائیے گا, کیمرہ مین کہے گا دکھائیں ذرا اس چیز کو. شہن صاحب یہ دکھائیں ذرا سامنے سیمیٹری دکھائیں ذرا دروازوں کی, کیا لاجواب ہے. سیدھے دکھائیں دروازے, سیدھے جو سامنے نظر آ رہے ہیں, بالکل سیدھے دکھائیں. اور شہین بھائی
फरूख साहब ये मिडल में सिंगल मार्बल पीस फाउंटेन देखें, और लोहे की छेनी इस्तेमाल नहीं होती थी फरूख साहब। जब आप लोहे की छेनी इस्तेमाल करते हैं तो क्रैक आ जाते हैं। दे यूज द डायमंड चेजल, व्हेन यू यूज द डायमंड चेजल देयर नो क्रैक्स इन द मार्बल। यही वजह होती थी कि पत्थर को बड़ा नफीस जो है तराशा जाता था। मार्बल लैटस है, शेप लुक लाइक द हनी कोम, शायद का छत्ता नहीं होता सर, ये बेसिकली मुगलों का एयर कंडीशन सिस्टम है। हवा जब बहुत तेज आती है तो उसको आगे रास्ता नहीं मिलता, ब्लॉक होकर खुलती है तो ठंडी हो जाती है। फर्स्ट ब्रीज कंप्रेस्ड आफ्टर एक्सपैंड, दिस द कूलिंग सिस्टम ऑफ द मुगल पीरियड। लेकिन अब तो वो फैल सिस्टम नहीं चल रहा, अभी तो गर्मी बहुत है। सिस्टम नहीं चल रहा, आप सही कह रहे हैं, वो सिस्टम नहीं चल रहा। जी नाज़रीन, जी ये शाहजहां की जो बनाई गई इमारत हैं जिसका बेडरूम था उधर मौजूद हैं। ये दरबान भी यहाँ दो हैं जो कि सिंबॉलिकली खड़े किए गए हैं। इनसे पूछते हैं अफजल साहब। हाँ जी सर, ये हमारे उस वक्त जो मुगलों के सिक्योरिटी गार्ड होते थे उनको चौबदार कहा जाता था। ये प्रॉपर मुगलों का जो प्रॉपर ड्रेस था उसमें ये खड़े हैं, हाथ में स्पीयर है, ऊपर इनके टर्बन देखें जिनको पगड़ियाँ कहते हैं, प्रॉपर इनके ड्रेस है। अब लोग आते हैं इनके साथ बड़ी खुशी से तस्वीर बनाते हैं और घर जाके मुगलों का जो पीरियड है उसको याद करते हैं। जब आप इनके साथ जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप मुगल पीरियड में खड़े हैं। अब हम दोनों खड़े होंगे तो पहले ये जो इन्होंने पकड़ा हुआ है ये क्या चीज़? ये स्पीयर थी, नेजा होता था प्रोटोकॉल के लिए। अब आप मेरे साथ खड़े होंगे और वीडियो स्टार्ट होगी। जी सुल्तान भाई, सब पकड़े हैं। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, सामने देखो, हम हैं सुल्तान, सब पकड़ लेते हैं, सब जकड़ लेते हैं, यहाँ तक कि हम सब कैद कर लेते हैं। बताओ ये यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं और इनके साथ क्या सलूक किया जाए? छोड़ दिया जाए, इनको कैद कर लिया जाए। ये शाही मेहमान है, इनको से छोड़ दिया जाए। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन महाराज का ये हुक्म है, इनको कैद खाने में डाल दिया जाए। हुक्म बदले भी तो जा सकते हैं। कैसे? आपको ढेरों शर्फियों से नवाजा जाएगा। हम खुश हुए। बाद अब्बा मुलाजा होशियार, शाही मेहमान शहजादे तशरीफ ला रहे हैं। खुश आमदीद। जी नाज़रीन, ये डेमोन्स्ट्रेशन करके इन्होंने बताया, दिखाया है, सिंबॉलिकली वैसे दिखा रहे हैं कि इस दौर में ऐसे ही मेहमानों की यानी खुश आमदेद कहा जाता था और जो इनको नहीं बुलाया जाता था या उनको रोक भी लिया जाता था। और ये ऐसी सूरत हाल थी। ये असल बताइए रोशन। जी बिल्कुल सर, ये बेसिकली उस वक्त ये प्रोटोकॉल स्टाफ हुआ करता था। शाही खानदान, हरम और जहाँ बादशाह बैठता था या गुजरता था तो उनके साथ यही जो अभी सुल्तान साहब ने पेश किया आपके सामने उसका अमली सबूत और यही लफाज जो है वो दोहराए जाते थे प्रोटोकॉल के लिए। दीवान ख़ास भी नाज़रीन अब चलते हैं जो शाहजहां के दौर में शायद तमीर किया गया था, वो भी आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये है दीवान ख़ास जो शाहजहां के दौर में तमीर किया गया था और ये ख़ास मेहमान जो आते थे बादशाह के, वज़रा भी और बहुत ख़ास मेहमान थे, उनके लिए तमीर किया गया था। ये आप देख सकते हैं, ये दीवान ख़ास है और पीछे दरिया रावी बहता था, उसका नज़ारा भी था और अंदर से भी आपको दीवान ख़ास दिखाते हैं। बीच में ये मेरे ख्याल से एक फाउंटेन लगा हुआ है और चबूतरे के ऊपर ये पूछते हैं वैसे अफजल साहब से। जी अफजल साहब। बिल्कुल जी, आपने सही कहा, ये शाहजहां के पीरियड की एडिशन है और ये 1645 में बनाई गई थी। बेसिकली ये प्लेस फॉर द VIPs थी, जो उनके मिनिस्टर वगैरह थे शाहजहां के, उनके साथ मीटिंग वगैरह का ये उसका पॉइंट हुआ करता था। और ये प्योर पर्शियन आर्किटेक्चर आपको नजर आ रहा है। अंग्रेजों ने जब 1849 पे यहाँ पे कब्जा किया तो उन्होंने इसको चर्च में तब्दील कर दिया। अंग्रेज दौर में ये बिल्डिंग एज ए चर्च काम करती थी। ये फाउंटेन था नाज़रीन, ये देख फाउंटेन था। इसके अंदर गौर से देखें, आपको स्टोन कार्विंग नजर आ रही है और यहाँ पे प्रीशियस स्टोन जो है, सेमी प्रीशियस स्टोन, वो ले किया हुआ था। बाद में आने वाले पीरियड में यहाँ से सारा उखाड़ लिया गया था। और जरा कार्विंग देखें, मैनुअल काम देखें हाथ का कितना खूबसूरत हुआ हुआ। मिडल में देखें। ये नाज़रीन दीवान ख़ास में चलते हैं और ये कहा गया है कि जी इन्होंने बताया कि ये किसी अंग्रेज़ दौर में ये चर्च भी था और चर्च का दर्जा दिया गया था दीवान ख़ास को। जाहिर है कि मुग़ल भी बाहर से आए थे और अंग्रेज़ भी बाहर से आए थे। बेसिकली तो इम्पोर्टेड हुक्मरान ही मिले जो बड़े सगीर को मिले। 1000 साल तकरीबन मुसलमानों की हुकूमत रही है। लोकल मुसलमान तो इधर दरबारी थे, वज़रा थे, लेकिन बादशाह मुग़ल थे या लोदिस थे या और भी जो गौरीज आए सारे इम्पोर्टेड थे और ये गोरे भी इम्पोर्टेड ही थे। महमूद गज़नवी जिनको हीरो कहा जाता है वो भी
बड़े सगीर से ताल्लुक नहीं था, हमले किए उन्होंने यहाँ। ये अंदर से दिखाते हैं जी आपको, आए कैमरामैन कहते हैं इधर अंदर से दिखाएं दीवाने खास को। ये आप देख सकते हैं, इसकी छत देखें, ये मार्बल से तैयार की गई है और बड़ा खूबसूरत काम किया गया है, ये आप देख सकते हैं। बल्कि वॉल चॉकिंग करना मना है, ये लिखा गया है, और जुर्माना 5000 रुपये रखा गया है इसका वॉल सिटी अथॉरिटी की तरफ से। और ये अच्छा जस्चर है कि कम से कम जो सियाह आते हैं मकामी और जो फॉरेनर्स, वो ऐसा, फॉरेनर्स तो खैर नहीं करते, मकामी सियाही इधर करते हैं। और ये जाली के जाली की साइड ज़रा दिखाई जाए, ये था जी दरिया बहता था और बादशाह जब लाहौर में आता था, लाहौर में खैर उसका जो पीरियड था कम ही रहा है, तो जाहिर है कि लाहौर में जब रहता था तो उस वक्त फिर कभी थोड़ी देर के लिए जब आता, जहांगीर बादशाह ज़्यादा अरसा रहा है, अकबर बादशाह भी ज़्यादा अरसा रहा है, जो उनके दादा थे शाहजहां के, और वाले साहब जो जहांगीर थे वो ज़्यादा अरसा रहे। ये आप देख सकते हैं कि ये पीछे से दरिया रावी का व्यू था, जो कि औरंगजेब आलमगीर के दौर में तब्दील किया गया था रुख उसका, नेचुरली डिवेट हो गया था। अच्छा ये बताएं, ये खाना भी यही खाता था? जी नहीं, खाना उनका शीश महल भी होता था। यहाँ पे सिर्फ उनकी मीटिंग हुआ करती थी, हाई लेवल की जो मीटिंग्स होती थी, पानी वगैरह सब यहाँ पे सारा होता था बड़ा काम। और दूसरा ये अपना अंग्रेज दौर में चर्च था, कैथोलिक नहीं, प्रोटेस्टेंट चर्च था जिसका। प्रोटेस्टेंट चर्च था। और ये सिंबॉलिकली ये कपड़े दिखाएं। हाँ जी, सिंबॉलिक, ये देखें सर, मुगल पीरियड में, इधर आ जाएं जी, कैमरामैन कहता है दिखाएंगे, ये कपड़े हैं मुगल पीरियड्स के, जो कि सिंबॉलिकली यहाँ रखे गए हैं। मुगल पीरियड में ये सर, मुगल पीरियड में जो उनके दरबारी होते थे या उनके मिनिस्टर वगैरह, तो ये मुख्तलिफ फ्रॉक स्टाइल जो है उनके ड्रेसेस हुआ करते थे। इनके नीचे चूड़ीदार पजामा होता था, ऊपर ये टर्बन होती थी, और साथ उनके ये सोट पड़ी हुई नीचे, ये हुआ करती थी वाली, ये प्रॉपर उनके ड्रेसेस हुआ करते थे। ये सोट ज़रा दिखाइएगा सर, ये नाज़रीन सोट आपको दिखाते हैं। ये उल्टी पकड़ी थी इन्होंने, ये बेसिकली ये सोर्स सिंबॉलिकली दिखाई गई है। लाहौर किले में एक म्यूजियम भी है जो सिख दौर का बना हुआ है, ये ज़रा निकाल के दिखाइएगा। ये तलवार सिंबॉलिकली, ये उस टाइम ज़ाहिर हथियार ही यही था, ये मर्द का जेवर था, बल्कि ख़वातीन के पास भी होता है। बिल्कुल, नूर जहाँ जो थी प्रॉपर वो तलवार रखती। चलिए जी आगे देखते हैं, आगे क्या दिखाएंगे जी? आगे हम जहांगीर के जी नाज़रीन, इस टाइम शाही मेहमान खाने जो शाही किले में बनाए गए थे उस दौर में, मेहमान जो आते थे उनके लिए, वो आपको दिखाते हैं। अफजल साहब से पूछते हैं इसकी हिस्ट्री भी। जी अफजल साहब यहाँ आ जाए। ये रॉयल, हाँ मैं दिखाने लगा, ये रॉयल गेस्ट हाउसेस थे, इनको शुरू अकबर ने किया, अकबर की डेथ के बाद मुकम्मल इनको जहांगीर ने किया। ये आपके फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे दोनों एक ही आगे। ये ऊपर देखे जी एनिमल बने हुए, इसी रो में देखे पहले, ये पहले आपको यूनिकॉर्न नजर आएगा, बुल, वो आगे देखे फिजेंट जिसको आप चकोर कहते हैं, आगे देखे एलिफेंट है सर, आगे देखे पीकॉक है, आखिर में देखे लाइन नजर आ रहे हैं। बेसिकली दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द हिंदू टेम्पल्स, जो हिंदुओं के मंदिर नहीं होते उनका ये आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगी। जब आप ऊपर देखेंगे तो ये हिंदू राजपूताना आर्किटेक्चर है, जब ये बड़ी बड़ी आप आर्चे देखेंगे ना, ये मुस्लिम और मुगल आर्किटेक्चर मिलेगा आपको। यानी इसमें आप कह सकते हैं कि हिंदू आर्किटेक्चर, मुस्लिम, ये सारा उन्होंने इकट्ठा किया है। ये अकबर की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, अकबर की सेकुलर पॉलिसी का एक सिंबल था। वो अकबर को किसी मजहब से, किसी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सबको साथ लेके चलता था। और उसकी बेहतरीन मिसाल आपको ये उसके हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर दोनों में नजर आएगी। आगे हम देखते हैं जहांगीर बादशाह की रामगाह, वो आप जी नाज़रीन ये अकब में आप देख सकते हैं जहांगीर बादशाह की ख्वाबगाह थी जो पीछे तामीर की गई थी। जहांगीर बादशाह और अकबर बादशाह ऐसे थे जो बेटा और जो बाप और बेटा जो बड़ा अरसा लाहौर में रहे, और दारुल सल्तनत उस टाइम दारुल खिलाफा भी था, अकबर के दौर में ही आ रहा है। वो भी उनसे बात करेंगे, पूछेंगे अफजल साहब से जो हिस्टोरियन भी है, जो हमें बता भी रहे हैं। ये अकबर साहब जरा अफजल साहब बताइए। अच्छा सर, आप ये जिस हाथे के अंदर खड़े हैं इसको हाथे जहांगीरी कहते हैं। इसको शुरू अकबर ने किया था, अकबर की डेथ के बाद इसको मुकम्मल जहांगीर ने किया था। ये आपके राइट और लेफ्ट जो है ये शाही मेहमान खाने हैं, और सामने जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है सर, ये वाली, ये बड़ी ख्वाबगाह कहते हैं इसको। ये जहांगीर के बेडरूम थे, ये 1617-18 में बनाए गए थे। ये जरा कैमरामैन को कहते हैं वो दिखाएं जरा जहांगीर के बेडरूम। ये जहांगीर के बेडरूम दिखाएं सर, ये सामने ये वाले। जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने इसको निचली किचन में तब्दील कर दिया,
डाइनिंग हॉल में तब्दील कर दिया। उनके सोल्जर जो ऑफिसर थे वो यहाँ पे सर खाना खाया करते थे। ये राइट इन द मिडल, ये देखिएगा सर, कैमरामैन कहते हैं ये दिखाएंगे। ये एक वाइट मार्बल हाउस आप देख रहे हैं, आपके ज़हन में कोई चीज आ रही है सर? ये जो चेस बोर्ड नहीं होता शतरंज का, उसकी शेप इसको बनाया गया था। और मिडल में जो तख्त आपको नजर आ रहा है सर, इसको महताबी कहते हैं। महताब कहते हैं चांद को, जिस जगह बैठ के आप चांद को देखते हैं उसको महताबी कहते हैं। जब ब्रिटिश आए तो उनके ऑफिसरों को ये कमरे लाट कर दिए गए थे, और ये जहां आप खड़े हैं ये सारा क्ले से भर के लॉन टेनिस की ग्राउंड बना दिया गया था। उनके सोल्जर जो ऑफिसर थे सर, वो यहाँ टेनिस खेला करते थे। बहुत मेहरबानी अफसर साहब। आगे नाज़रीन आपको दीवाने आम दिखाते हैं, जहां आम लोगों से, आम आवाम से बादशाह मिलता थे और मुलाकात करते थे, और वहां लोग आते थे अपनी अर्जियां लेके, अपनी दरख्वास्तें लेके आते थे, और ज़ाहिर है बादशाह इनकी माली इमदाद भी करता था, और अर्जियों पर जो भी हो सकता था वो उनकी दादरसी की जाती थी। ये चलिए तो आपको ख्वाबगाह दिखाने के बाद दीवाने आम दिखाते हैं। जी, शाही किले के नाजरीन दीवाने आम में हम आए हैं। वाकब में आप देख सकते हैं यहाँ आम आवाम से बादशाह मुलाकात किया करता था, उनके मसाइल सुना करता था, और उनके हल भी फौरी तौर पे हल भी किया करता था। माली इमदाद भी गरीब को, गुरबा को यानी यहाँ मदद भी करते थे। जी अफसर साहब बताइएगा ज़रा। अच्छा सर, हम जब ये हमारे बैक साइड पे जब आपको बिल्डिंग नजर आ रही है दीवाने आम है, इसको बेसिकली शाहजहां ने 1633 में बनाया था, ओपन कोर्ट फॉर द कॉमन पीपल। जो लोग थे जिनके मसले मसाइल होते थे वो यहाँ पे आते थे और आके बादशाह को अपने मसले मसाइल पेश किया करते थे। और राइट इन द मिडल आप देखिए, आपको एक झरोका नजर आ रहा है, ये अकबर का झरोका दर्शन है। ये आगे जाके दिखाते हैं। ये कैमरामैन को कहेंगे जरा आगे दिखाए और इस पे नजर आ जी। अब ये बेसिकली जितना भी पत्थर है ये वाला, ये आप झरोका बताएं जी, ये झरोका सामने आपको नजर आ रहा है। ये अकबर ने अपना जो मजहब बनाया था दीन इलाही, उसके मुताबिक लोगों को अपना चेहरा दिखाया करता था। सिखों के दौर में इसकी छत गिर गई थी, लड़ाई से। कैमरामैन कहते हैं वो आगे दिखाए उनको। सिविल वॉर के दौरान इसकी छत गिर गई थी। अंग्रेजों ने इसको दोबारा रेनोवेट करके मिलिट्री हॉस्पिटल बना दिया। अंग्रेज दौर में ये बिल्डिंग एज ए मिलिट्री हॉस्पिटल काम करती थी, ये सारा। और ये जो लोहे की बारें लगी हुई हैं ये अभी तक ब्रिटिश दौर की हैं। यहाँ पे पर्दे डाल के वार्डों को सेग्रीगेट किया हुआ था। ये फ्लोर जो इसका लेफ्ट हो रहा है ये अभी तक ओरिजिनल है। ये जो फौज थी अंग्रेजों की, उनके हॉस्पिटल था। ये एक नाज़रीन इन्होंने इंकशाफ किया इस हवाले से, दीवाने आम के हवाले से, कि तरह तरह के यानी इसको इस्तेमाल में लाया गया मुख्तलिफ तरीक़ों से। और इधर आए जी, ये ज़रा थोड़ा सा हमें ये बताएं कि ये बादशाह इधर सामने बैठा करता था। ऊपर से कैमरामैन को कहते हैं दिखाए जी ज़रा सामने। कैमरामैन वो ऊपर जो ये ओरिजिनल तख्ता है जहाँ पे अकबर जो है अपने मजहबी मुनाजात के लिए यहाँ बैठा करता था। जब शाहजहां आया तो अकबर के दौर में ये बिल्डिंग नहीं थी, लोग टेंट लगा के बैठते थे। जब शाहजहां आया तो उसने ये दीवाने आम बनाया और यहीं बैठ के लोग अपने मसले मसाइल बादशाह के सामने पेश किया करते थे। ये सिखों के दौर में ये गिर पड़ी और ब्रिटिश ने इसको दोबारा रिस्टोर करके मिलिट्री हॉस्पिटल बना दिया था। ये मिलिट्री हॉस्पिटल भी रहा है नाजरीन, और ये आप देख सकते हैं ये ऊपर पार्टीशन की गई थी वार्ड्स की ऊपर। ये अंग्रेज़ दौर में ये उन्होंने अपने सोल्जर्स के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल भी बनाया है इसको। जी नाज़रीन, इधर हम दीवाने आम में मौजूद हैं। यहाँ सियाह भी आए हैं, मकामी सियाह भी हैं, इनसे भी पूछते हैं कि वो हिस्ट्री के बारे में क्या इनको पता है। ज़्यादा शौक़ से ज़ौक़ से आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? शाहिद महमूद। शाहिद साहब शौक़ से आए हैं या क्या? जी ये मेरे को भांजे आए हुए हैं वहाँ से फ़ौरन से, तो वो विज़िट करना चाह रहे थे मुग़ल एम्पायर हिस्ट्री, फिर उनको ब्रिटिश का देखने का शौक़ है कि वो यहाँ पे कैसे रहे हैं। सो वी आर विजिटिंग हियर। तो क्या काम करते हैं आप? वी आर कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्शन का। तो कैसा आपको लगता है इधर आके, शाही किले में आके? अभी तो वेदर भी कुछ बेहतर है, एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो ये जो हिस्ट्री है इससे भी लगाव है? जी हिस्ट्री से लगाव हो तो यहाँ पे आया जाता है, वरना हर बंदा तो यहाँ पे नहीं ये आता। तो ज़वाल की ज़ुबू हाली की दास्तान भी बताता है ये किला। लेकिन ये किला आपको आपसे 400-500 साल पहले की इनकी जो स्टेट थी उसके बारे में भी बताता था कि वो कैसे हुकूमत करते थे। सही कह रहे हैं, बल्कि 200 साल कह लें इसको, क्योंकि रंजीत सिंह के दौर में भी हुकूमत रही है। उससे पहले 400 साल पुराना है, तो जब से नहीं, वैसे तो शायद साहब ये तो उससे भी पुराना है। कहते कबल मसीह से कबल का ये बना हुआ है, लेकिन ये अकबर ने बेसिकली इसको तमीर दोबारा तोड़ के इसको पत्थर का बनाया था। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मकामी सियाहों को और इंटरनेशनल लोगों को? यहाँ पे आना चाहिए, इधर आके अपनी हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए।
तो must visit here. बहुत शुक्रिया शाहिद Thank you. साहब। आज गुफ्तगू सुनी आपने, उन्होंने कहा है कि जी लोगों को इधर आना चाहिए, अपनी हिस्ट्री के बारे में मालूम होना चाहिए। ये बेसिकली ज़ुबू हाली की भी दास्तान है, लेकिन अरूज की भी दास्तान है, अरूज और ज़वाल की दास्तान है ये किला जो शो करता है। और ये किला अकबर के दौर में तमीर हुआ था, लेकिन उससे पहले भी यहाँ किला था। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, अफसर साहब हमारे साथ हैं। जी अफसर साहब, क्या मैसेज आप देंगे आप इस मौके पे? जाहिर है कि आप इतने अरसे से इधर काम भी कर रहे हैं, आपको यहाँ जो मकामी सियाह कम हो गए हैं या आ रहे हैं, या इंटरनेशनल सियाह कम हो? इंटरनेशनल से थोड़ा सा आजकल जो है वो सीजनल क्लाइमेट भी है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारा जो अक्टूबर से जो फॉरेन टूरिस्ट है उसका फ्लो ज़्यादा हो जाता है, और जो पाकिस्तानी है वो तो गर्मी में आपको पता ही थोड़ा कम निकलते हैं। लेकिन मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ, चाहे पाकिस्तान से या बाहर से लोग हैं, वो इधर आए, हमारा जो सकाफती विरसा है उसको देखें। आपने बात सही की है कि ज़ुबू हाली ज़रूर है, लेकिन इसका जो रूज था वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अफसर साहब, मैं इंडिया भी कई दफ़ा गया हूँ। इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट इस टाइम भी बहुत ज़्यादा। तो मतलब कहने का ये क्या वजह है कि हमारे यहाँ टूरिज्म वो डेवलप नहीं हो सका जो होना चाहिए? सर उसकी वजह ये है, अब आगे इस किले को आप मेरे साथ हैं 1 घंटे से, बल्कि आपने देखा भी होगा कि कितना अच्छा रेस्टोरेशन का काम चल रहा है और रेनोवेशन का काम चल रहा है। इंडिया में जो चीज़ें हैं ना वो प्रिजर्व्ड है, हर चीज़ जो है वो एक मेरिट के ऊपर है। और ताजमहल हो गया, फतेहपुर सिकरी हो गया, दूसरे बड़े जो किले हैं, उधर टूरिस्ट का फ्लो बहुत ज़्यादा। हमारी अभी रेस्टोरेशन के बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला 1.5 साल के बाद कि यहाँ पे इंडिया से ज़्यादा जो है टूरिस्ट आना शुरू हो जाएगा। और हमारी ये जो मोनूमेंट्स हैं इनकी अट्रैक्शन बढ़ेगी पूरी दुनिया में, हाईलाइट भी इनको किया जा रहा है। अब हमाम शाही में देखें जाके दिल्ली गेट के अंदर कि वॉल सिटी अथॉरिटी ने कितना काम किया, वहाँ पे आज से कुछ अर्सा पहले रेहड़ियाँ और सब्जियाँ रखी हुई थी। आप जाके देखें कि आपको मकामी और फॉरेन टूरिस्ट मिलेगा। मस्जिद वजीर खान की रेस्टोरेशन के बाद देखें फ्लो कितना अच्छा हो गया। अब ये शाही किला है, इसको भी इंशाल्लाह ताला हमारी वॉल सिटी अथॉरिटी इसको रिस्टोर कर रही है, रेनोवेट कर रही है। आने वाले दिनों में जैसे टूरिस्ट का फ्लो ज़्यादा होगा तो आप ये देखेंगे कि लोग इसकी तरफ ज़्यादा माइल होना शुरू। बहुत शुक्रिया अफसर साहब, आपने बड़ी हमें इंफॉर्मेशन दी, बड़ा साथ दिया, इस वाले से बड़ा टाइम दिया। और नाज़रीन, हम जो फ़ायदा शाह साहब हैं उनसे भी मिलते हैं, जो इधर मकामी ऑफिसर हैं वॉल सिटी अथॉरिटी की तरफ से। लेकिन मैं यहाँ ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल लेवल पे जो टूरिज़्म के फ़रोग के लिए इक़दाम करने चाहिए। ये हुकूमत का भी है कि वो टूरिस्ट दोस्त पॉलिसियाँ बनाए ताकि फ़ॉरेन टूरिस्ट भी पाकिस्तान आ सके। इंडिया में फ़ॉरेन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं और बल्क में बहुत आते हैं, जबकि पाकिस्तान में इसके बरक्स सूरत हाल है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सूरत हाल कुछ हुकूमत बेहतर करेगी। चलिए डॉक्टर फ़ायदा साहबा से भी बात करते हैं। नाज़रीन, इस टाइम हम एडमिन ऑफिसर हैं जो लाहौर फोर्ट में, सईदा फ़ायदा शाह, उनसे बात करते हैं। वो क्या इस सिलसिले में बताती हैं हमें, वो पूछते हैं। वॉल सिटी अथॉरिटी की तरफ से वो एडमिन ऑफिसर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। ये बताइएगा कि क्या काम किया जा रहा है डेवलपमेंट का इधर, खास तौर पर रेस्टोरेशन का लाहौर फोर्ट? अच्छा, ऐसे है कि लाहौर फोर्ट को काफ़ी पहले जो शाही किला बेसिकली ज़द-ए-आम में शाही किला कहा जाता है, ये एक 2014 में वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी को ये मिला था। और जब ये हमें मिला था तो इसकी हालात कुछ अच्छे नहीं थे, जिसमें से जो हमने प्रोजेक्ट इमीडिएटली किया था वो है बारूद खाना, जो अभी आपने देखा। और सेकंड प्रोजेक्ट हमने रॉयल किचन का किया है। इसके अलावा शाहबुर्ज गेट जो आप एंटर होते हैं वो भी, और पिक्चर वॉल की एक साइड कंप्लीट हुई है जो पाकिस्तान की और पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेंटिंग पिक्चर वॉल है, जो उस दौर में बनाई गई थी, जिसके ऊपर आपको जो कुदरत के हवाले से जो उस टाइम के किंग थे उनका जो पैशन है वो दिखेगा। अब जो रिसेंटली हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम जो पिक्चर वॉल की बैक साइड्स हैं, जो साउदर्न साइड हैं, उन्हें कंप्लीट कर रहे हैं। शीश महल के अंदर थोड़ा रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। इसके अलावा हमने लो मंदिर जो है वो रिस्टोर किया है और बाकी उसके ऊपर और काम चल रहा है हमारा। आपने अकबरी हमाम देखा जो बैक साइड पर है, वो डिस्कवर हुआ, उसके ऊपर हमने काम करके उसको पब्लिक के लिए ओपन किया है। एंड 4000 साल पुरानी टनल जो है वो भी हमने उसके ऊपर भी वर्कआउट किया, जिस कदर हो सका हमने उसको लोगों के लिए ओपन किया। लेकिन हम उधर अभी लोगों को भेज नहीं रहे। लोगों का ये एक मिथ है कि जी ये सुरंग दिल्ली तक जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई सुरंग नहीं है। वो टनल है, एक बहुत पुरानी टनल, सेवरेज टनल है। इसके अलावा आपके मीडियम से एक जो चीज़ लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि शाही किला आएँ,
اپنی ہسٹری کو پہچانیں, اس کے ایمبینس کو انجوائے کریں, اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو یہ بتائیں کہ ہمارے پاسٹ کے اندر جو ہماری جو ہسٹری رہی ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں. لاہور فورٹ کے اندر 3 انٹرونشنز ہیں, 3 ڈیکیڈز گزرے ہیں. پہلا ہے مغل, دین آئے سکھ اینڈ دین برٹشرز, اور اس کے بعد انڈیپینڈنس جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوئی. تو آئی وش کہ پبلک زیادہ سے زیادہ آئے اور اس جگہ اس کی ایمبینس سے انجوائے کرے لاہور فورٹ کو. تھینک یو. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ قلعے کی ریسٹوریشن کے لیے کام جاری رہنا چاہیے, اور پاکستان کی حکومت کو پاکستان میں ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کام کرنا چاہیے تاکہ انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی پاکستان آ سکے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ وال سٹی اتھارٹی قلعے کی حالت کو مزید بہتر بنائے گی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے علی فاروق کو کیمرہ مین شہین بابا کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.